to Sanket Group of Coaching. My name is Sanket Purohit. Today we are going to conclude your chapter number 3 by solving each and every exercise 3.1, 3.2 and 3.3. So let's begin with exercise 3.1. So exercise 3.1 major first sum says, how will you describe the position of table lamp on your study table to another person? Let's first draw a table. You all know my drawing, but I will still try to make it very good one. First of all, understand this is your table and let's say here is your lamp. Okay, so table and lamp. Now how will you describe that where your lamp is located, okay, on your table? Let's say this is 2 feet from left hand side, okay, and from topmost side it is, let's say, 1 feet. Okay, so what you will tell to other, that my table lamp is located 2 feet from left hand side and 1 feet from topmost side. Okay, so that's the end of your major first question. Please note it down, each and every one. So major sum number second बच्चों, now street plan. Street plan पता है क्या होता है? जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, रोड प्लान करते हैं ना, वैसे street plan. A city has 2 main roads which come across each other at the center of the city. These 2 roads are along north-south direction and east-west direction. सबसे पहले 2 रोड बना लेते हैं. Let's say ये जो है अपना नॉर्थ है और ये है अपना साउथ, और यहां से ऐसा समझो कि ये है अपना ईस्ट और ये है अपना वेस्ट. ओके, all the other streets of the city run parallel to this roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Okay, अब देखो, parallel to each other मतलब these lines will never intersect each other. बराबर है, और दोनों के पैरेलल है, और क्या करना है, ठीक है, 5 streets are there. Using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw the model of city on your notebook. Represents the road या streets by single lines. अब ध्यान से देखो मैं कैसे स्ट्रीट बना रहा हूं. नॉर्थ वेस्ट में 5 स्ट्रीट बनेगी, नॉर्थ साउथ में इसको स्ट्रीट 1 दे दो, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. अब आप जब ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आप लोग ये ड्रॉ करोगे तो इन बिटवीन दिस 2 यू विल हैव टू स्पेस 1 सेंटीमीटर. बराबर है, कितना, 1 सेंटीमीटर. सेम वे यहां से देखो, अब स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. ओके, नॉर्थ साउथ में स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. सेम वे ईस्ट वेस्ट में 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे क्रिस क्रॉस हो गए हैं. ओके,
A particular cross street is made by two streets, one running in north south direction and other in east west. तो एक को देखोगे स्ट्रीट वन और ये स्ट्रीट वन, ठीक है, एक नॉर्थ साउथ में दिखेगी और एक ईस्ट वेस्ट में दिखेगी. Then each cross street is referred to in the following manner. अब ध्यान से देखना. If second street running in north south direction, second street is running in north south direction, and fifth in east west direction meet at some crossing, then we will come across street 2,5. तो ये वाला जो पॉइंट होगा हम लोगों को ये दिखाना है 2,5, मतलब नॉर्थ साउथ पहले दिखाना है और ईस्ट वेस्ट बाद में दिखाना है. तो ये हो गया अपना 2,5. नाउ यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3. तो 4,3 किसका देखेंगे हम लोग, इसका. ये है नॉर्थ साउथ पहला देखना है, फोर्थ स्ट्रीट एंड 3. तो 4,3 ये मेरा हो गया 4,3. ओके, एंड नेक्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4. तो 3,4 क्या होगा, ये देखो, नॉर्थ साउथ का 3 और ईस्ट वेस्ट का 4. So 3,4. So that's the end of your exercise 3.1 बच्चों. Understood? Note it down. Let's begin with exercise 3.2 बच्चों. Major first sum का first question, if you can see, write the answer of each of the following questions. First, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? अब हम लोगों ने सबने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, चलो. हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन वो हो गया अपना y एक्सिस. देन सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस. तो क्या बनता है, वो चार क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स. आंसर टू क्वेश्चन 2 इज क्वाड्रेंट्स. देन थर्ड बच्चों, write the name of the point where these two lines intersect. कहां पे intersect होती है, origin. Very good. Now आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगा ही डेफिनेटली. तो बाजू में देखिए आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है. ओके, नाउ उस ग्राफ से अब आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताओ, सेकंड का फर्स्ट, मेजर सेकंड का फर्स्ट. देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी फॉर बॉल, -5,2. पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कोई बता सकता है, 5, -5. Then third is the points identified by the coordinates -3, -5. कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, E. भाई M नहीं है, -3, -5 नीचे चेक करो, इट इज योर पॉइंट E. देन फोर्थ, अभी भी M बोल रहे हैं, E है भाई E. देन check the point identified by the coordinates 2, -4. 2, -4. G. Then fifth, the एप्सिका of point D. एप्सिका मतलब क्या होता है, x axis of point D बताना है. 6. Very good. Then the ordinate
ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच बताओ, -3. देन 7th देखो, द कोऑर्डिनेट्स पूछे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल 0,5, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं है तो वो हो जाएगा 0 and 5. 8th, the coordinates of point M -3,0, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट नहीं है, so -3,0. That's the end of exercise 3.2 बच्चों. Please note it down. Let's begin with exercise 3.3 बच्चों. First of all, I will ask you certain question and then we will plot. So first is, in which quadrant or on which axis do each of the points, अब each of the points में पहला पॉइंट है -2,4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड. वेरी गुड. देखो ये याद रखना, ये वाली सिस्टम, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है. चलो अब देखो 3,-1, फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. -1,0 क्वाड्रेंट या एक्सिस? चेक करो, -1,0 क्या आएगा? कौन सा? एक्स एक्सिस. वेरी गुड. देन नेक्स्ट इज 1,2, फर्स्ट क्वाड्रेंट. Then -3, -5, third quadrant. Now you are asked question also. Verify your answer by locating them on Cartesian plane. Now what you each and everyone have to do is draw this on your graph paper like this. इसको नाम देना है x, ये y, this is your origin O, and now you will have to take, देखो आपके ग्राफ पेपर में एक डार्क लाइन होगी और बाकी की पतली पतली लाइट लाइन होगी. जो डार्क लाइन आएगी उसके ऊपर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां तक आप लोग लिख सकते हो. सेम वे ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी एक डार्क लाइन और बाकी की सारी जो रहेगी वो थोड़ी लाइट लाइंस होगी. 1, 2, 3, 4, 5, let's say 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5. ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट है -2,4. हम लोगों ने देखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे देखो -2 और 4 तो कहां पे आएगा? ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में. इसको एक्सटेंड करो डॉटेड, इसको एक्सटेंड करो डॉटेड, फिर जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा -2,4. पहले देख लो फिर आप लोग कर सकते. देन 3,-1, x का 3, y का -1, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो 3,-1. देन नेक्स्ट देखो -1,0, ये रहा -1,0. देन नेक्स्ट 1,2, x का 1, y का 2, 1,2. ये प्लीज आप लोग ये जब भी ये डॉटेड लाइंस बनाओ पेंसिल और स्केल से ही बनाना, स्केल नहीं होगी आपका मार्क्स कटेगा, ये याद रखना. मूविंग अहेड, -3,-5, तो x का -3, y का -5, ऐसे स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए.
this point is -3, -5. Okay बच्चों, so that's the end of question number 1. मैं question number 2 भी यही ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूं. See over here, each and everyone. PNC, pay attention. Plot x, y given the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the x-axis. अब पहला जो है वो क्या होगा? -2,8. -2,8 वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -2,8. सेकेंड, तो x का -2. आप लोग है ना, आप लोग सेकंड ग्राफ में ये चीज प्लॉट करोगे. ये एक ग्राफ सेकंड ग्राफ में ही आपको ये प्लॉट करना है. Okay, now -2,8. This is -2,8 बच्चों. Then next, sorry, -1,7. -1,7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड. -1,7 ऐसे इस तरह से इसको खींचो, ऐसे डॉटेड लाइन. -1,7. Moving ahead, 0, -1.25. 0, -1.25 सबसे पहले. अब ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा? y एक्सिस. तो ये हो गया 0. -1.25. अब आप लोगों के बीच में यहां पे देखना, यू विल फाइंड 10 लाइन्स. बराबर है. तो -1.25, ये -1, फिर उसके नीचे एक लाइन है, उसके नीचे एक लाइन है, और उन दोनों के बीच में ऐसे पॉइंट करो. -0, -1.25. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट 1,3. 1,3 कहां पे लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट. So this is 1,3. Okay. Then next 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Already there. So that's the end of your exercise 3.3 as well, and that's the end of your entire chapter 3 coordinate geometry. If you have gone through this video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Thank you very much. I am signing off. Bye bye.